में भी थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जरूरी नहीं बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं। क्वाड्रेटिक हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे कल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हम फिर से शुरू में कुछ ऐसे प्रॉब्लम ले लेंगे। Those are depending on the roots of quadratic equation. Problems depending on the roots of quadratic equation and nature of the roots of the quadratic equation. Very interesting problem. Today's first problem. If P and Q, numbers P and Q are, number P and Q are the roots of quadratic equation. These two numbers are the roots of the quadratic equation. X square plus Px plus Q equals to 0. See the question. X square plus Px plus Q equals to 0. Then what are the possibilities about P and Q? P equals to 1, Q equals to -2, P 0, Q is 1. So there are four possibilities we have considered. P is -2, Q is 0. Both must be there. Now the last option is P is -2, but Q is 1. P 0, Q is 1. P is -2, Q is 0. P is -2, Q is 1. Okay. Now for this question, what you have given that P and Q are the roots of this quadratic equation. P and Q are the roots of the quadratic equation. So as P and Q are the quadratic roots of quadratic equations, what is the value of P and Q? What are the possible values of P and Q is our question. Very simple is that as P and Q both are the roots of the quadratic equation, P will come in place of alpha and Q will be in place of beta. So alpha plus beta will be P plus Q. Alpha into beta will be P into Q, and I have P plus Q will be same as alpha plus beta, and P into Q will be same as alpha into beta. So what is value of A? Value of A is 1, value of B is P, and value of C is what? Q. So we have the value of A is 1, value of B is P, value of B is P, and value of C equals to Q. We use alpha plus beta matlab P plus Q. It is what? Minus B upon A, minus B upon A. What is B? It is P, so minus P upon 1 mid minus P. What is alpha beta? Alpha beta means PQ. What is value of alpha beta? It is always C upon A. What is C? Q. 1. Q upon 1. It is Q. This is minus P and this is Q. So both the values of P plus Q and PQ we obtained. See here again these two values P plus Q and PQ. The value of PQ equals to Q. Value of PQ we obtained as a Q. Now proceed further. If PQ equals to Q, if Q is not 0, then P will be 1. If Q is not 0, then P will be 1. Means there are two possibilities. Q is 0 or Q is not 0. If Q is 0, see here, when you are cancelling any two terms from both the sides. अगर हम किसी टर्म को दो साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो टेक केयर ऑफ द वैल्यू इज 0 और नॉन 0. उसमें दो पॉसिबिलिटी होते हैं वैल्यू के कैंसिल करते समय. अगर वो नॉन 0 है तो ही कैंसिल होती है. अगर वैल्यू 0 है तो वी कैनॉट कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स. मींस Q has a two possibilities. The first possibility Q is 0 and the second possibility is Q is not 0. जब Q 0 होगा, अगर Q 0 होगा तो ये 0 होगा, RHS भी 0 होगा. वी आर राइट. अगर Q 0 होगा तो इसमें Q equals to 0 पुट करो. If Q will become 0, then P plus 0 will be minus P. As P plus 0 will minus P, P plus Q is minus P. P plus Q में Q 0 पुट किया तो P will be minus P. अगर P minus P आ रहा है, what does it mean? अगर एक नंबर उसके नेगेटिव मतलब P itself is 0.
अगर Q 0 है तो P भी 0 होना चाहिए. Yes, yes, you are right, समय. Now, मतलब Q is not 0. अगर Q 0 नहीं है, very good. Yes. Okay, okay. Now, अगर Q 0 नहीं है, मतलब PQ इक्वल्स टू Q में अगर 0 नहीं है, तो Q कैंसल हो जाएगा, नॉन जीरो. सो P विल बी 1. अगर P 1 है, तो ये 1 वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कीजिए. P प्लस Q इक्वल्स टू माइनस P में. P equals to 1. 1 plus Q is minus P. 1 plus Q will be minus 1. Yes. 1 plus Q will be minus 1. 1 plus Q will be minus 1. 1 plus Q will be minus 1. So Q will be minus 2. You are right. P is 1 and Q is minus 2 is our answer. P is 1 and Q is minus 2 is our answer. It was option A. चलो next problem की ओर जाएंगे. See here, these are the startings. P is 1. P 0. Okay. It was a very interesting question on the roots of quadratic equations. Yes, you got my point. Now, again, a very interesting question. Depend on the modulus. No, अभी express करने की कोई जरूरत नहीं है. Problem हुआ है बार बार. See that video या screenshot लेते जाइए students. अगर आपको लगा अच्छा problem है. So I have the question. X square plus 5 mod x plus 6 equals to 0. Then what is the sum of roots of this equation? Sum of roots. Sum of real roots. Sum of real roots. Very good. Question ऐसा, x square plus 5 mod x plus 6 equals to 0. Then what is the sum of the real roots of this equation? Now mod x has two possibilities. We will go first way. There is again a shortcut, but mod x has two possibilities. Mod x is x when x is 0 or x is positive. Mod x is minus x when x is negative. So we have two possibilities. Now this possibility is for positive or x0. When this possibility is true, when x is positive or 0. This is a true possibility only when x is positive or 0. This is a yes. This is possible only when x is positive or 0. Then and then it is possible. See here. Mod x okay, ये पॉजिटिव x के लिए है और दिस इज फॉर नेगेटिव x. No. That's the question. Some you got answer 0, but there is a problem in this answer. See, we will go to this problem. X square plus 5 mod x plus 6 equals to 0. पहले केस में इक्वेशन होगा mod x का स्क्वायर भी x पर होता है. So plus 5 into mod x will be x because x is positive or 0 plus 6 equals to 0. So we solve this quadratic equation x plus 3 into x plus 2 equals to 0. We solve this quadratic equation x plus 3 into x plus 2 equals to 0. Now we have the roots x is minus 3 and x will be minus 2. These are the two roots, but keep in mind, guys, अभी सर ओके है, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था. ओके होता है चलते रहता है. हाँ, कॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है. वॉइस भी ब्रेक होता है और वीडियो भी ब्रेक हो रहा है. सर वीडियो कब चल रहा है? चलो चले ना. वो अच्छे स्क्रीन वगैरह दिखा है.
स्क्रीन अटक नहीं रही सर है, सिर्फ वॉइस का बीच में ब्रेक हुआ था बस। सॉरी। बिल्कुल सही दिख रही है। गुड गुड गुड। अभी ये जो प्रॉब्लम है, यस, इन दिस प्रॉब्लम, ओके, what we have the two roots x is minus 3 or x is minus 2. From this equation we obtain the values of x is minus 3 comma minus 2. These are the two values. Now what about this equation? This is what x square minus x will have same as a square, minus x square will be plus x square, plus, so minus 5x plus 5 ka minus 5x because mod x is minus x, plus 6 equals to 0. No, these roots are what? Product must be plus 6. 3 into 2, 6. Minus 3 and minus 2. Their product is minus plus 6. So minus 3 and minus 2 are its roots. So x minus 3 are the factors. X minus 2, 0. So x will be 3 and x will be 2. So you are thinking that the quadratic equation has, you thought that the quadratic equation has minus 3 minus 2 plus 3 plus 2, these are 4 roots and their sum will become 0. So one of our students told us the answer is 0, but answer is not 0. See here, why answer is not 0? Very simple thing is that these two roots occur when we have this type of quadratic equation, and this quadratic equation is obtained from this quadratic equation, and this case plus 5x will become when mod x is x, और mod x x कब होता है? when x is positive और 0. मतलब x के वैल्यू पॉजिटिव और 0 और हमारे x के वैल्यू क्या आ रहे हैं? निगेटिव आ रहे हैं. सो मतलब इसको कोई मतलब नहीं है. So it is giving us a contradiction. So it has no real roots. इसके roots real नहीं है. चलो आगे जाएंगे. Again नहीं, अभी देखो ना, फिर से वही बात है. x mod x will be minus x if x is negative. अगर x negative है तो हमारे आंसर आ रहा है x is 3 and 2. These are not negative. Again we don't have real roots. Means the quadratic equations have no real root. So our answer 0 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ भी नहीं. So our answer is, हमने ऑप्शन नहीं दिए थे इसलिए, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए. Very interesting problem. This is one of the method. You can take the screenshot at the same time. Take the screenshot of this page. See here, I have to explain it in different way. Yes, none of these is our answer. There will be no roots, which gives you the value 0. X square plus 5 mod x plus 6 equals to 0. Yes. हमने ऑप्शन नहीं दिए थे कि ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर करना था. इसको और एक मेथड है. वेरी सिंपल मेथड इज दैट. व्हाट डज दिस मेथड टेल्स अस? टेल अस, इट टेल अस अबाउट व्हाट? इट टेल्स, सी हियर, हमारा ये क्वेश्चन है, हम दूसरी तरह से जाएंगे. देखो, कुछ वी विल सी सम. In this problem, what was given? X square plus 5 mod x. Let me explain again it in detail. X square plus 5 mod x plus 6 equals to 0 was our quadratic equation. And for this quadratic equation, we were having some possibilities of roots of this quadratic equation. What is the sum of real roots of this quadratic equation? So there is no answer, means there is no number whose sum is what? 0, 5, कुछ आंसर उसके सम नहीं आ रही है. तो इसमें हमें इसका ये एप्लीकेशन करते समय we had to take care of such problems. हमने पहली बार भी बोला था. Now next, yes कोई जरूरी नहीं अभी. अभी हमें इसको दूसरी तरह से जाना है इसी प्रॉब्लम को. Observe the problem clearly. What is value of x square when x is positive or 0 or negative? What is the value of x square always? What value does x square give? What value? x square के वैल्यू क्या होते हैं जब x पॉजिटिव या 0 होता है? तो what are the values of x square? x जब पॉजिटिव और 0 होता है तो x square के वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव 0 नेगेटिव में x square is always पॉजिटिव और 0.
Again, mod x is always positive. Mod x is always positive. Again, next, ये क्वेश्चन जो है mod x is always positive. अब ये पॉजिटिव है जीरो है, अगर ये जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो. अपने आंसर में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा. मतलब एक्स स्क्वायर इधर इस केस में जीरो नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ओनली पॉजिटिव एंड मॉड एक्स इज पॉजिटिव. पॉजिटिव और जीरो. अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो 6 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, वो केस हमने डिलीट की. अभी आगे जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मॉड एक्स भी पॉजिटिव था. पॉजिटिव को 5 ने मल्टीप्लाई किया, ये भी पॉजिटिव. सुन लो सब लोग, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव, उसमें ये पॉजिटिव ऐड किया, वो जीरो कैसे आएगा? सो दिस विल नॉट जीरो. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कुछ भी रूट्स नहीं देगा. इट विल नॉट गिव अस एनी रूट्स. सो दैट्स इट. थिंक ओवर इट, बाद में देख लो. चलो हमें कुछ और प्रॉब्लम्स की ओर जाना है. सो दिस वाज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट इंस्टेड ऑफ दिस, if you have another quadratic equation containing again a mod, see here, a is negative real number. A is negative real number. We are going to consider so many problems on quadratic because quadratic consists of some facts about the real numbers. A is a negative real number. A एक negative real number है. But A is not minus 2. The value of A is not minus 2. Then the equation, the question is important, interesting question, I think. X square plus A mod X plus 1 equals to 0. इस इक्वेशन के बारे में पूछा है. This is our question. What about the nature of roots of this quadratic equation? There are so many options. 4 options are there. पहला option, not have any real roots. Cannot have any real roots. पहला option. Option B. A is a negative real number, A is not minus 2, then the equation x square plus A mod x plus 1 equals to 0. Cannot have any real option roots. Must have exactly 2 real roots. Option, इसके 2 real roots हो सकते हैं. Real roots or no real roots? No real roots. Option D. दोनों possibility दे रहे हैं. Exactly real roots. Exactly 2 real roots or no real roots. हो गए तो 2 real root हो गए या नहीं हो गए real roots, मतलब imaginary. 4 real roots. 4 और no real. शॉर्ट में दिया है अभी. तो कोई इक्वेशन के बारे में जाएंगे. ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो तो हम बाद में देखेंगे. फोर रियल रूट्स और नो रियल रूट्स. एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अभी उसको 4 रियल रूट्स के लिए ये के 2 वैल्यू यानी मॉड एक्स के जो वैल्यूज है वो हमें हियर इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. कैन नॉट हैव रियल रूट्स. इसके रूट्स रियल नहीं हो गए. कब हो गए रियल नहीं? जब ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0. ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, नॉट हैव एनी रियल रूट. सोचो सोचो.
First, think that A is a negative. A itself is a negative. Think that A itself is a negative. But A is not minus 2. Now see here. What is value of B square minus 4AC? B square minus 4AC. What is value of B square minus 4AC? What is value of B here? B is A or plus A or minus A, whatever it may be B. B plus A भी हो सकता है, depend on the value of mod x. उसमें हम जाएंगे नहीं. फिर से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन mod x के दो वैल्यू होता है, एक प्लस एक्स होता है, एक माइनस एक्स होता है. अगर प्लस एक्स किया तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस एक्स किया तो माइनस ए हो जाएगा. किसी भी केस में बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर आता है, प्लस ए स्क्वायर. ओके, माइनस इतना टाइम नहीं रहता. 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, सो माइनस 4. अब ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होगी क्योंकि इज नॉट माइनस 2. माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 4 माइनस 4 जो नहीं है. चलो, इसकी वजह से ये जीरो नहीं. फिर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे की, ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 4. ये जीरो नहीं है, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ए स्क्वायर माइनस 4, अगर ए स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव या निगेटिव है. अगर ए स्क्वायर माइनस 4 जो है उसके दो ऑप्शन है, ए स्क्वायर माइनस 4 है. एक तो 3 ऑप्शन जीरो नहीं है, एक कैंसल हुआ. अभी दो ऑप्शन रह गए, जीरो या पॉजिटिव या निगेटिव. पॉजिटिव, निगेटिव, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac के 3 ऑप्शन होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव. जीरो नहीं है क्योंकि ए इज नॉट माइनस 2. माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, उसी केस में. या प्लस 2 का सवाल नहीं क्योंकि ये निगेटिव है. अब हम इसके पॉजिटिव की चर्चा करेंगे. ए स्क्वायर माइनस 4 इज पॉजिटिव. अगर ए स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो. अभी ए स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस 4. कौन से रियल नंबर का स्क्वायर 4 से ग्रेटर होता है? नंबर लाइन पे जाइए. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टुडे. नंबर लाइन पे जाने के बाद ए स्क्वायर पॉजिटिव होने के लिए कौन से नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है? अगर नंबर 0 है, 1 है, 2 है, प्लस 1 है और लेफ्ट साइड में आ गए तो माइनस 2 है. अब माइनस 2 टू प्लस 2 के बीच में कौन सा भी नंबर लो, उसका स्क्वायर कभी भी ग्रेटर देन 4 नहीं होगा. मतलब हमारा नंबर है 102 से आगे होगा. 2 से आगे या माइनस 2 से पहला. सो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4 कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन 2. बट ए इज ग्रेटर देन 2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज गिवन नेगेटिव. As a is negative, that a is greater than 2 is not possible. मतलब a is less than minus 2. So a square is greater than 4. मतलब a is less than minus 2. a is less than minus 2 when कब, कौन से केस में? b square minus 4ac मतलब a square minus 4 is positive. मतलब b square minus 4ac positive. मतलब it has two real roots, unequal two real roots when a is less than minus 2. उसको दो रियल रूट्स हो गए when a is less than minus 2. a is less than minus 2. बट इसमें सवाल रहता है कि बस इट हैज रियल रूट्स का बात हो गई. इट हैज रियल रूट्स, बट रियल रूट्स में हम फिर आएंगे. रियल रूट्स में मुझे फिर से यह इस कंडीशन में आना है. अब इफ a स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव, इसमें हम जाएंगे. a स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव. a स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव मतलब a स्क्वायर इज लेस देन 4. तो कौन से नंबर का स्क्वायर लेस देन 4 है? तो वो नंबर है माइनस 2 प्लस 2 के बीच में. तो सभी के नंबर का स्क्वायर है वो 4 से लेस है. तो ये भी पॉसिबिलिटी एक ही हो सकती है 0 टू माइनस 2 के लिए. 0 टू माइनस 2 के नंबर का स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है. पॉजिटिव नंबर तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ये के लिए. रुको रुको, अभी बहुत सारा हो रहा है. अभी ये कंप्लीट प्रॉब्लम को देखिए. पॉजिटिव नंबर तो हम सोचेंगे नहीं. तो निगेटिव नंबर है 0 टू माइनस 2, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मतलब इसको नो रियल रूट्स, ये भी उसका ऑप्शन है. तो जिसमें जिसमें नो रियल रूट्स है वो भी हमने कंसिडर किया. अभी रह गए नो रियल रूट्स. हमारे पहले ऑप्शन में भी नॉट हैव एनी रियल रूट, बट हमारा
रियल रूट्स का भी ऑप्शन इसमें पॉसिबल है. सो दूसरा ऑप्शन है हैव एग्जैक्टली टू रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स. मस्ट हैव. दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, बट हमारे नॉन रियल रूट्स का ऑप्शन भी ओपन है. फिर आते हैं हम ऑप्शन सी की ओर, एग्जैक्टली टू रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, तीसरा ऑप्शन. बट ये भी ऑप्शन आता है, बट चौथा ऑप्शन है फोर रियल रूट. तो क्या इसको फोर रियल रूट्स हो सकते हैं? दो रियल रूट्स तो आ रहे हैं, मतलब इसको रियल रूट भी है, नॉन रियल रूट है. तो जाएंगे वेदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज फोर रियल रूट्स. तो इसी में उसका आंसर छिपा है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन. देखिए इसको नॉन रियल रूट्स का ऑप्शन हमारे पास ओपन है, बट ए अगर लेस देन -2 है तो इसके रियल रूट्स b² - 4ac पॉजिटिव. इस इक्वेशन का फॉर दिस इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. नेगेटिव के लिए ए के वैल्यू हमने देखे 0 to -2 और पॉजिटिव के लिए वैल्यू है लेस देन -2. रुको, सी नहीं है ऑप्शन, आंसर डी है उसका. देखिए कैसा हमने क्या किया है कि मॉड एक्स के बारे में हमने सोचा नहीं, हम डायरेक्टली सिर्फ ए के बारे में सोचने लगे. अगर मॉड एक्स के दो वैल्यू कंसिडर किए तो x² + ax+1 इक्वेशन और x² - ax+1 सो वी हैव टू इक्वेशंस, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें भी b²a² होगा, इसमें भी b² - a² होगा. सभी कंडीशन ये दोनों के लिए चलती है. तो पहले इसको भी दो रूट्स और इसको भी दो रूट्स, इसलिए उसको चार रूट्स. सो इट हैज फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स बिकॉज ऑफ मॉडुलस. फोर रियल रूट्स और नो रियल रूट्स. इट इज आवर आंसर. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आविष्कार चॅटिंग करू नको, सातारवाले चालतं, लक्ष दे. सातारा, कोल्हापूर, सांगली, मिरज, नगर, औरंगाबाद, नासिक, हर सब जगह के हो. क्या करते हो? प्रॉब्लम कैसा लगा आपको? मुझे लगता है 5 मिनट रह गए होंगे शायद. किती वेळ राहिला असेल सर? ओके.
हेलो सर. A is negative. Also, A is negative, but A is not -2. Because A is a non-negative other than -2. And we had this problem to find what is the nature of roots of this quadratic equation, how many root it has. Now see here, if A is negative, we will think it later on. Now see here, mod x. When mod x is there, it has two values, plus x and minus x. When mod x is plus x, it will be mod of x, a x plus 1 0, pahla equation. And another equation will be x square minus x plus 1 0. We have two equations. Now we will decide the nature of roots of both the equations. For the first equation, the discriminant delta is b square minus 4ac. It is a letter to use to denote discriminant b square minus 4ac. What is value of b in the first case? A. Its a square will be what? A square. Minus 4 into a into 1. पहले केस में 4 into a मतलब ये 1 और c1 minus 4. A square minus 4 पहले केस में. Again in the second case, delta will be. In this case, b square is what? Small a. B square मतलब minus a. Minus a का square b plus a square. Very interesting thing is there. A square minus 4 into 1 is minus 4. मतलब in both the cases, we are obtaining a square minus 4. We obtained a square minus 4 in both the cases. For the first equation, also for the second equation. There are two quadratic equations. If it has real roots, it will have two real roots. If it has real roots, it will have two real roots. There is no possibility of equal roots. Why? Because a is not -2. इसमें समझने में दिक्कत होती है बच्चों को. a square minus 4 आपको ऑब्टेन में हुआ है, b square minus 4ac का वैल्यू. इसके ऊपर सब डिपेंड है. तो a square minus 4 के तीन पॉसिबिलिटी because of b square minus 4ac. b square minus 4ac एज अ तीन पॉसिबिलिटीज होती है. पहली पॉसिबिलिटी 0, दूसरी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और तीसरी पॉसिबिलिटी निगेटिव. अब ये 0 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि b square minus 4ac मतलब a square minus 4. अगर a square minus 4 0 हुआ तो a की वैल्यू प्लस या -2 होगी और a की वैल्यू -2 नहीं है मतलब, और +2 भी नहीं है. क्यों? बिकॉज a निगेटिव है. तो ये वो एंड हुआ. यू गॉट इट. ये +2 -2 नहीं है. +2 तो होगा ही नहीं बिकॉज निगेटिव है. हमें सिर्फ a की निगेटिव वैल्यू के बारे में सोचना है. सो b स्क्वायर माइनस 4ac के दो पॉजिटिव ये वैल्यू हो सकते हैं. चेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू मतलब a स्क्वायर माइनस 4. नो दो रियल रूट है. a स्क्वायर माइनस 4 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव. a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. a स्क्वायर कब ग्रेटर देन 4 होगा? जब a की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी या -2 से लेस. बट 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती बिकॉज a इज नेगेटिव मतलब a इज लेस देन -2. a अगर -2 तो a स्क्वायर इज लेस देन 4. a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. अगर a लेस देन -2, a इज लेस देन -2 तो ये सब कुछ पॉसिबल है. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव. ये सेकंड केस. ये सेकंड केस पॉसिबल है व्हेन a इज लेस देन -2. और पॉजिटिव मतलब इट हैज टू रियल रूट्स. अब फिर से जाएंगे टू रियल रूट्स की ओर. ये जब लेस देन -2 होगा तो ये दोनों वैल्यू a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac दोनों इक्वेशन के लिए b स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है जब a लेस देन -2. मतलब ये दोनों इक्वेशन को दो दो रूट्स रहेंगे. इसके भी दो रूट्स, इसके भी दो रूट्स. सो इट हैज टोटल 4 रूट्स. इट हैज 4 रूट्स. पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए. ए की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है. ए इज लेस देन -2 इतना ही दिया है, बाकी कुछ नहीं. तो टोटल रूट्स हो गए 4. अगर हो गए तो 4 रियल रूट्स. 4 रियल रूट्स. एक ही ऑप्शन में 4 रियल रूट्स था. अगेन निगेटिव के बारे में सोचते. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. इफ b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हम सोच रहे हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव मतलब a स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव क्योंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 4 निकाली. a स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव मतलब a स्क्वायर इज लेस देन 4. a स्क्वायर कब लेस देन 4 होगा? जब -2 या +2 के बीच में a की वैल्यू होगी. -2 और +2 के बीच में.
बट ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब ए के वैल्यू -2 या 0 के बीच में होंगे। 0 to -2 ए के वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं -2 एंड 0 के बीच में। तो ऐसे केस में इसको नो रियल रूट्स होंगे। सो द आंसर इज नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट होंगे तो 4 रियल रूट्स या नो रियल रूट्स। दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये पॉजिटिव होता है, सोचो ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। ये पॉजिटिव होगा तो हम जो लिख रहे हैं ये इज ग्रेटर देन -2, इधर है ये, तो वही सिचुएशन होगी ए पॉजिटिव के लिए। ए लेस देन -2 की जगह सिर्फ हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन +2, और ये +2 तो इसको 2 रूट्स रहेंगे +2 ग्रेटर देन 2 के लिए। हाँ, +2 नहीं होना पॉजिटिव के लिए, तो इसके भी 2 रूट्स यानी 4 रूट्स। अगेन 0 to 2 के लिए इट हैज नो रियल रूट्स, तो ऑप्शन वही 4 रूट्स। गुड क्वेश्चन। पॉजिटिव रूट्स के लिए there are different way of explaining it. Other people can explain you in different way. This is the way that I explained this problem. Now I have one problem. Yesterday I got one problem. That problem is our sir has sent me if A1 A2 बीच में कुछ प्रॉब्लम ले जाएंगे, A3 अप टू दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये AP है और A1 प्लस A7 प्लस A16 is 40, then it was asked A1 plus A7 plus A16 is 40. Then it was asked what is the sum of first 15 term. This was a question. What is the sum of first 15 terms? So matlab yes 15 he was asked in this problem. Yes 15. The problem is formula SN. क्या formula SN? S15 मतलब SN. पहले SN का फॉर्मूला लिखेंगे. SN will be what? n/2 into what? 2a plus n-1 into d. हमें S15 फाइंड करना है, बहुत सही। 15/2 into 2a plus 15 minus 1 n की वैल्यू 14d। इसमें से 2 कॉमन आएगा, ये 2 को कैंसिल करेगा, 2 ये 2 कैंसिल हो गए, तो 15 into a plus 7d। और इसी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 15 into a plus 7d का कैलकुलेशन हमको करना है, बट हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ a plus 7d? तो जाएंगे प्रॉब्लम की गिवन कंडीशंस में, a1 plus a7 plus a16 is 40, उसी में आपका आंसर है a1 plus a7 plus a16। इसको हम अलग तरह से लिखेंगे, a1 मतलब फर्स्ट टर्म है, यस, a7 मतलब a plus 6d nth टर्म का फॉर्मूला, a16 मतलब a plus 15d फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फर्स्ट टर्म गिवन 40। इसमें आपको a plus 7d मिल जाएगा।
ए प्लस 7D इससे मिलेगा और वो आपको पुट करना है और ये वैल्यूज हमको मिल रहे हैं. वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज फ्रॉम A1 plus A7 plus A16. Okay, A plus A 3A, 6 plus 15, 21D. Yes, we got it. Is 40. What does it mean? A plus 7D will be what? Dividing by 3, 40 upon 3. So substitute the value 40 upon 3 here. 40 upon 3 इसमें put करो. So it will be 15 into 40 upon 3. And that is your calculation. 3 5s are 15, 5 4s are 200. 200 was our answer. Yes, very easy. फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं. बट है ट्रिकी. चलो नेक्स्ट. आपको समेशन का नोटेशन मालूम है. यू नो द नोटेशन ऑफ समेशन. व्हाट इज द सम ऑफ k equals to 20? 1 plus 2 plus 3 plus k. What is it? 1 plus 2 plus 3 plus k. What is it? See the problem now. One plus 2 plus 3 plus k equals to what? सम दिया है. k equals to 1 लो तो वैल्यू आएगा 1. फिर उसको आपको ऐड करना है. k equals to 2 लो तो k is 1 to 2 जाएगा. k is 1 to 20 ना. 1 to 2. 1 to 2. 1 plus 2 3 आएगा. देख लो. हाँ समझ लो. सुन लो. k equals to 3 आएगा. 1 plus 2 plus 3. देखो k equals to 1 तो नंबर 1 आएगा प्लस k equals to 2 तो नंबर 1 plus 2 आएगा 3. k equals to 3 तो नंबर प्लस नंबर 1 plus 2 plus 3 plus 4. 2 1 plus 2 plus 3. 2 plus 3 plus 1 6. k equals to 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 क्योंकि आपको k बोल रहा है ये. 6 plus 4 10 प्लस 10 आएगा. और ये समेशन मतलब ऐड करना है आपको. k1 लो जो वैल्यू आएगी वो प्लस k2 लो वहां तक जाइए फिर ऐड करो 10. फिर नेक्स्ट k इक्वल्स टू 5 15. फिर नेक्स्ट ऐसे करते करते आपको 20 k इक्वल्स टू 20 तक जाना है. तो इसी को आपको देखना है. अभी ये जो टर्म्स है ये कैसे टर्म है इसमें आपका आंसर है. वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. थोड़ा सा जनरल मैथमेटिक्स या 11th लेवल का है थोड़ा बहुत. पहला टर्म 1 है. अभी ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है. पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 6, पहला 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन. व्हाट विल बी द 20th टर्म? और सभी की सम लेना है आपको. यू हैव टू फाइंड. हम एक जनरल टर्म तैयार करेंगे. n इक्वल्स टू 2 में 3 कैसा मिलता है आपको देखना है. सेकंड 1 plus 2. ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, sum of first n terms. Its nth term formula is what? Sum of nth term n plus 1 upon 2. तो इसमें हर जगह हमारा फॉर्मूला आता है nth टर्म का n into n plus 1 upon 2. n1 तो 1, n2 तो 3 आएगा. देखो 2 plus 1 3 और ये 2 2 कैंसिल. n3 तो ये 6 आता है. n4 तो ये 10. तो n आपको कहाँ तक लेके जाना है? 20 तक. और उनका सम करना है. नहीं 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 नहीं. ये तो देखो 39 इधर हो रहे हैं. हमें आगे लेके जाना है 20 तक. ये बहुत है. पूरा इनकम्प्लीट दिखाया मैंने. ये ऐसा है. हाँ मैंने एक टर्म के बारे में पूछा. आपको ये टर्म मिलेगी, ये टर्म मिलेगी, ये टर्म मिलेगी, उनको ऐड करके जाना है. ये एपी का प्रॉब्लम है. एपी से थोड़ा रिलेशन है लेकिन ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस. इसकी हर टर्म इस तरह की है और उसका ऐसे 20 टर्म का सम है. सम ऑफ 20 टर्म्स.
ये अलग सीक्वेंस है। n इंटू एन प्लस वन हर एक टर्म्स के बारे में तो कोई भी बताएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। बट ऐसे n1 लेके 2 लेके 3 लेके 4 लेके फिर उनका सम बनाना है, फिर ये सभी का सम बनाना है हर एक का। ये टोटल जाना है n इक्वल्स टू 20 पुट करके, लास्ट नंबर आपका 20 इंटू 20 प्लस वन, नहीं, लास्ट नंबर होगा 20 इंटू 20 प्लस वन अपॉन 2, मतलब 210। आपका सम जो है, नहीं लास्ट नंबर है 210, 1 से लेकर 210 ऐसे सब सभी नंबर का सम है ये जो सम है। ये क्वेश्चन को समझ लो, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 210। नहीं, अरे दो दो 210 तो लास्ट नंबर है, सभी का सम निकालना है भाई। वन 190 कैसे, 190 तो बीच में एक आधे नंबर की वैल्यू आती है 190 के नजदीक, सभी का सम है, सम ऑफ ऑल दिस, सभी का सम है, क्वेश्चन समझ लो। नहीं उतनी नहीं है, लेकिन ऐसी है, 1000 में है वैल्यू। लास्ट टर्म है 210, वेरी गुड कदम। लास्ट टर्म है 210, फर्स्ट टर्म है फर्स्ट, बट ये एपी नहीं है, दूसरी सीक्वेंस है ये। आपको सिर्फ सभी के सम लेना है, टोटल लेना है। नहीं 210 तो लास्ट टर्म का वैल्यू है, ये सभी का एडिशन है 1 to 210। ट्राई करो ना, ट्राई, कोई फॉर्मूला नहीं है, नंबर्स में ढूंढना है आपको। इससे ज्यादा है 1248 से। अब कुछ कैलकुलेशन किया है शायद स्टूडेंट ने, समथिंग नियर। फर्स्ट टर्म 1 है ना इधर, 1 से लेकर 210, समथिंग नियर, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। 1540 इज आंसर, किसने निकाला है 1540? हाउ, कैसे, हाउ? यस, 1540 इज योर आंसर। कदम ने बताया पहले 1540, उसके बाद में सिद्धेश, जिसमें आविष्कार, आदित्य, मयूरेश, साहिल एंड सो मेनी स्टूडेंट्स। बाकी लोगों ने भी बहुत सही बताया, 1545 ट्राई कर रहे थे आप लोग, वेरी गुड। सर कितना टाइम रह गया? सर अभी टाइम बस नहीं बता रहा है सर, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, we are solving some problems on quadratic equations.
बीच में एक आधा क्वेश्चन आता था, हम उसे सॉल्व करते हैं. So how to find the roots of all of you familiar with but different questions. We have given mod x square. मॉडुलस से क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन से मेरिट बहुत कम ज्यादा होता है. मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस टू जीरो. देन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मींस एक्स इक्वल्स टू व्हाट. ऑप्शन ए प्लस टू, ऑप्शन बी माइनस टू, ऑप्शन सी प्लस और माइनस वन दो, ऑप्शन डी नन. दिस इज योर प्रॉब्लम. अब वेरीफाई भी कर सकते हो. वेरिफिकेशन माइनस टू बताया है मतलब प्लस टू और प्लस वन नहीं है. माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, फोर माइनस टू, टू माइनस टू जीरो, प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू प्लस टू फोर, प्लस वन तो नहीं आएगा. प्लस वन, वन प्लस वन टू माइनस टू, बट माइनस वन नहीं आएगा. वेरी गुड. ऑप्शन इज बी माइनस टू. यस. देखो प्लस टू अगर पुट किया तो मॉड टू का वैल्यू टू आएगा, टू का स्क्वायर टू फोर आएगा. प्लस टू किया तो मॉड टू का वैल्यू टू आएगा, फोर प्लस टू माइनस टू नॉट जीरो. तो ये नहीं है. अब जाएंगे प्लस और माइनस वन. बी के और बाद में जाएंगे प्लस और माइनस वन. प्लस वन और माइनस वन का मॉड आता है वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन वन, वन माइनस टू तो ये जीरो आता है. कैसी बात है प्लस वन और माइनस वन के बारे में. प्लस वन माइनस वन क्यों नहीं चलेगा. फिर जाएंगे माइनस टू की ओर. माइनस टू का मॉड प्लस टू आता है, उसका स्क्वायर प्लस फोर. मॉडुलस ऑफ माइनस टू कैसा है. प्लस टू आएगा. कौन सा आंसर आएगा ए बी सी. फिर से सोचो. देखो कंफ्यूजन. चेक करेंगे बोथ बी एंड सी. चलो चेक करेंगे. प्लस टू माइनस टू प्लस और माइनस वन एंड ऑप्शन डी प्लस टू माइनस टू प्लस और माइनस वन एंड नन. चलो जाएंगे वेरिफिकेशन में. जब आप में ऐसी दिक्कतें आती है देखो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे. मॉड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर ऑलवेज सेम प्लस और माइनस एक्स. पहला इक्वेशन मॉड एक्स पॉजिटिव या जीरो होगा तो मॉड एक्स विल बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू जीरो. पहला एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन. एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो इसको सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन जीरो, x plus 2 x minus 1 0. So x will be minus 2, x will be plus 1. X is greater than 0, so minus 2 will be not the answer, means x will be plus 1. ये पहले कंडीशन में x will be plus 1, माइनस 2 नहीं आता आंसर. अब दूसरा कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा नहीं तो ऐसा बनेगा, दोनों प्लेट के क्वाड्रेटिक के. एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स तो माइनस एक्स माइनस टू जीरो. तो इसमें आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन. x will be plus 2, x will be minus 1. बट ये केस आती है निगेटिव x के लिए तो इसका मतलब ये 2 नहीं आएगा, x will be minus 1. सो पहले केस में प्लस वन, दूसरे केस में माइनस वन. प्लस वन और माइनस वन इज योर आंसर. प्लस टू नहीं आएगा. मॉड एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू प्लस टू किया तो मॉड एक्स का वैल्यू टू आता है. देखिए प्लस टू क्यों नहीं आता, माइनस टू क्यों नहीं आता. उनका स्क्वायर फोर आता है और किसी केस में फोर प्लस टू टू, सिक्स, सिक्स माइनस टू जीरो नहीं आता. तो प्लस टू माइनस टू आंसर नहीं है. प्लस वन और माइनस वन इज योर आंसर. सो ऑप्शन इज सी. सी आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस वाज आवर क्वेश्चन. बहुत सही क्वेश्चन था.
ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसके बारे में हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है. Now I have the question. Two x square minus 3x minus 6 equals to 0 has roots अल्फा एंड बीटा. उसके रूट्स मालूम नहीं है बट है अल्फा बीटा, आप फाइंड भी कर सकते हो. Then the quadratic equation whose roots are what are these? Alpha square plus 2 and beta square plus 2. Alpha square plus 2 and beta square plus 2. ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2. Alpha square plus 2 and beta square plus 2. ऑप्शंस देता हूं. ऑप्शन ए 4x square plus 49x plus 118. ऑप्शन बी 2x square minus 3x minus 6 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2. अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एक रूट है और दूसरा है बीटा स्क्वायर प्लस 2. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है. देयर आर सम ऑप्शंस. पहला है 4x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 1180. इसमें साइन चेंज है, ये माइनस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, माइनस करो. ये प्लस को ये यही नंबर है 449,118 में 4 ऑप्शन बना है. दूसरा ऑप्शन है 4x स्क्वायर, मिडिल टर्म को निगेटिव करो, माइनस 49x प्लस 118. तीसरा ऑप्शन है 2 बजे तक चलेगा. 2 बजे तक चलेगा. बहुत सही क्वेश्चन पूछा, कितने बजे तक चलेगा? 2 बजे तक ले लेंगे. अब टाइम कितना हुआ है? टाइम 5-10 मिनट रह गए होगा 2 बजे को. 2 बजे तक चलेगा. अब इसी को चेंज करना है. 4x स्क्वायर, हाँ यस, माइनस 49x माइनस 118. फिर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. 4x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 1180. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब हमको ये ऑप्शन देखे, ऑप्शन सी आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2. ऑप्शन सी बताया किसी ने. क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2. ऑप्शन बी भी आ रहा है. ए बी सी तीनों ऑप्शन आ गए. चलो हम जाएंगे सॉल्यूशन की ओर. कैसे सॉल्व किया जाए? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are एबीसी ऑप्शन आ रहा है. हम एक काम करेंगे, x की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे, रूट x पुट करेंगे. 2 इंटू रूट एक्स, x की जगह हम पुट करेंगे रूट x, तो ये हो जाएगा 2x. देखो x की जगह रूट x पुट किया तो हमें x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वाला और बीटा स्क्वायर वाला मिलेगा. ये नहीं मिलेगा प्लस 2 माइनस 2 वाला. प्रोसेस से जाएंगे. सीयर अल्फा बीटा रूट्स है. अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे. अल्फा बीटा वाला ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए हमें मालूम है उसका स्क्वायर रूट लेना होता है.
सो 2 into रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 2x रिप्लेसमेंट 2-3-4 दिन की पहली बात है। 3 रूट एक्स माइनस 60, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 रूट एक्स को राइट साइड में लेके जाइए। सो 2x माइनस 6 विल बी 3 रूट एक्स, स्क्वायर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 6 2s are 24x प्लस 36 विल बी 3x 9x, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 9 रूट x, 9x इधर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 9 माइनस 24 माइनस 9 23 33 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। चलो अब हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए? देखो हाँ ट्रिक्स, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो हमको मालूम है हम क्या करते थे, अगर प्लस पी प्लस के तो क्या करते थे, माइनस करना है सिर्फ। तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 रिप्लेस करना है। 4 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 36 0। कैलकुलेशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर को 4 मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर, माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 16x, इसमें ऐड हो जाएंगे माइनस 32 में, प्लस 4 16 इधर ऐड हो जाएंगे 36 में। तो हम ले लेंगे माइनस 48x, ये माइनस 32x और ये माइनस 16। हाँ अभी 2 2s are 4 4 प्लस 4 4s are 16 प्लस 16 उधर ऐड हो जाएंगे, माइनस 32s are 32 2s are what 64 64 36 और यहाँ से 16 30 16 आएगा पहले टर्म से नंबर, ये 16 आएगा, 2 2s are 4 4s are, ये माइनस माइनस प्लस 64 16 प्लस 64 और ये प्लस 36, एक आधा नंबर रह गए, 2 2s are 4, ये 4x स्क्वायर माइनस 48x तो हो रहा हमारा। ऑप्शन देते समय अगर गलती हुई तो ऑप्शन सी तो है, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा। सर ये रिकॉर्डिंग को हटा दो बाद में, ऋषिकेश सर ये लास्ट का पार्ट हटा दो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तक तब हमें 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 6 0। फिर हम क्या करेंगे आगे? नहीं ठीक है 33 है, यस 33x, एक बढ़ गया, दो बढ़ गए, सो माइनस 33 और ये 16 बराबर है माइनस 49x। वेरी गुड, अपना आंसर आता है 118, इधर 2 बढ़ गए 0, यस कैलकुलेशन, गुड सजेशन। तो ये है आपकी टेक्निक, पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला निकालो, उसके लिए रूट एक्स, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 मतलब माइनस 2, बस सिर्फ कैलकुलेशन में। सो हमको ट्रिक से ट्रिक बनानी है, आज के लिए इधर हम रुक जाते हैं। नहीं बी नहीं आता है, ये प्लस 118 आता है, हम यही रुकते हैं आज। ओके कल कुछ नए चैप्टर के साथ कल ले लेंगे, वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कोन कल ले लेंगे, फिर से अलजेब्रिक के चैप्टर के ओर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते रहेंगे। इसी प्रॉब्लम के साथ हम इधर आज का सेशन एंड करते हैं। आपका नेक्स्ट सेशन देख लो, सर से कांटेक्ट करो। धन्यवाद। Next session will be at 2:15. There will be the English lecture. Next lecture at 2:15. There will be the English lecture. After that 3:30 there will be the GAT lecture.